Hi. So in this particular part of the playlist, we are going to look for bond valuation. Bond valuation, the most important thing you need to have for this topic is time value of money understanding. If you understand time value of money, bond valuation is very simple for you. What comes under bond valuation? Two things, bond and valuation. Bond क्या होता है? Bond is simply an instrument which offers you a fixed rate of interest. There are two instruments if you want to raise money. Either you will go for equity or you will go for debt. Bond is a part of debt where you have to pay a fixed rate of interest. We will check about this more in the next part, which is about financial markets, right? And valuation, we can value anything which offers a certain amount of cash flow in future and which can be discounted or pulled back to present value. So exactly, valuation is what? uh, Valuing anything which offers a series of cash flow and which can be discounted to the present. Simple. What happens in case of bond valuation? How will you value a bond particularly? You will value the present value of all the coupons. Now, what is coupons? Coupons is equal to the fixed interest you are getting. Interest, like you might have seen bonds like 9% IIFL bonds, right? So, what this 9% means, it's the fixed coupon you are going to get on the face value of this bond. There might be a difference between its actual price versus the face value. So whenever you are calculating this coupon, you have to use the face value. We will check in questions. So you have to consider the coupons and its present value plus the redemption amount and its present value. Say a bond is redeemable after 5 years and you want to value it now. So after 5 years, it will offer you a redemption value of say 1000, which is usually the par value, and you're valuing now. So is this matching with the time concept? No, you will get 1000 5 years from now and you have to value it now, 5 years earlier. So you have to pull back this value by 5 years. That's the redemption amount and उसका present value thing. ठीक है? तो what we did, we took the present value of all the coupons plus we took the present value of the final redemption amount. In short, we got the bond value. Remember, value versus price. We checked in time value of money and corporate finance initials also. That value may differ from price. Price is determined by market forces of demand and supply. Okay, so we check that what we need coupons, we need redemption value, and simply get the present value, we will get the bond value. So, what are the inputs or the components required for bond valuation? First, you must have coupon. Then, you must have time, how many years of redemption are left. Then, you have a certain amount of redemption amount. How much will you get on the maturity of that particular bond? That bond can be redeemed at discount, at par, or at premium. Discount means if it was 100 rupee bond, it might be redeemed at 95. Par means same as face value. Premium means above face value, right? And most important thing for time value of money you need is the rate with which you will pull it back. How will you pull it back? By discounting. Then you need a discounting rate, or it's also known as the required rate of return. Because I have a certain expectations that I want 8% from a bond which is offering only 6% of coupon. So I need to pull back that amount by 8% to get the present value which I am ready to pay for that particular bond. Right? अब required rate of return होता क्या है? Required rate of return वो होता है जो कि मैं expect करूँगा एक सिक्योरिटी से कि if I am investing in you, you have to give that at least that amount of to me. Required rate, right? And हम बॉन्ड से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. And how will it impact the value of bond, the present value of bond? For the first three components we check कि कूपन होगा, कूपन ज़्यादा होगा तो आज बॉन्ड के लिए ज़्यादा पैसे देने को रेडी होगा, वेरी कॉमन सेंस. टाइम जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा लेट मेच्योरिटी होगा उतना कम पैसा मैं देने को रेडी होगा क्योंकि मेरा तो पैसा आज लॉक हो रहा है, राइट? रिडम्पशन अमाउंट, डिस्काउंट पार प्रीमियम हमने देख लिया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन वी विल चेक इन एक्सेल. एंड फॉर डिस्काउंटिंग रेट एक ऐसी चीज़ है जो इन सबको ओवर पावर कर सकती है, right? And it has a huge impact. For example, if a company is paying coupon of 8% and you require 6%, कंपनी 8% दे रही है, मुझे 6% चाहिए, अज्यूमिंग नो डिस्काउंट नो प्रीमियम, सब कुछ पार पे चल रहा है, तो मुझे तो 6 ही चाहिए, कंपनी 8 दे रही है, तो मैं क्या करूँ? महंगे में बॉन्ड खरीदूंगा,
राइट, एकदम एकदम नॉर्मल चीज़, या उससे भी नॉर्मल है तो फर्स्ट चेक आउट दिस केस. इफ द कंपनी इज पेइंग अ कूपन ऑफ 8%, आई वॉन्ट 10%. सो हाउ कैन आई मेक मोर देन द कूपन? मैं सस्ते में बाय करके महंगे में बेचूंगा, तो मैं आज उस बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू कम देने को रेडी हूँ, क्योंकि फ्यूचर में उसमें ज़्यादा में बेचूंगा, राइट. और कूपन से तो जो कमा रहा हूँ वो कमा ही रहा हूँ. तो होगा क्या कि एक बॉन्ड था जिसका फेस वैल्यू 1000 था, जो रिडीमेबल भी 1000 पे ही था, जो कि 10 ईयर्स में मेच्योर होने वाला था, जिसपे कूपन मुझे 8% मिल रहा था, बट मुझे 10% की रिक्वायरमेंट थी. तो मैंने उसको 10% से पुल बैक किया. कैसे पुल बैक किया? हर ईयर का कैश फ्लो लिया फॉर 10 ईयर्स. 80 आ रहा था. 80 कैसे आया? 8% इंटू 1000. ये मेरा कूपन आ रहा था, मैंने इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, एंड 10th ईयर के एंड में मुझे 1000 रुपीज़ मिलने वाला था, उसका भी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला. कैसे निकाला होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1.08 टू द पावर 10 करके, ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू. इन सब के बाद मुझे पता चला कि आज उस बॉन्ड की वर्थ है, वैल्यू है 877.1. फेस वैल्यू कितनी है? 1000. तो मैं कम क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे ज़्यादा कमाना है. More than coupon I want to make return on out of it. How can I make return? By buying at less and maturing at par. In this case ये चीज़ उल्टा हो जाएगा. कूपन मुझे ज़्यादा मिल रहा है बट मुझे कमाना कम है, तो मैं क्या करूँगा? महंगे में बाय करूँगा कंपेयर टू पार वैल्यू. इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज इन दिस, यू विल बेटर अंडरस्टैंड व्हेन वी डील विद द यील्ड वाला पार्ट. तो मैं महंगे में बाय करूँगा और सस्ते में बेच दूंगा, तो भी मेरा रेट कम हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेट, क्योंकि कूपन तो एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, राइट. सो डिस्काउंटिंग रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है. और क्या इम्पैक्ट होता है पता है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ना निकालने पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इजीली पॉसिबल है. एंड हाउ विल यू एसरटेन हाउ मच यू रिक्वायर? हवा से थोड़ी बोल देंगे कि हमें इतना कमाने की इच्छा है. देर आर सर्टेन बेसिस ऑन विच यू बिल्ड अप कि इतना कमा सकता हूँ, इतना और रिस्क ले रहा हूँ तो इतना इतना और कमाते हैं. बेसिस इज द रिस्क फ्री रेट. रिस्क फ्री रेट बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो, कि अगर मैं कोई रिस्क ना भी लूँ, क्योंकि यूजुअली हम बीइंग एन इन्वेस्टर वी इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. If we invest in government bonds, we can make a risk-free rate of return. Risk-free का मतलब is virtual risk-free, not actually risk-free, because government can also default, but on the face of it, or in theoretical aspects or virtually, the government cannot default. And what you can get by investing in government securities, जो RBI issue करता है during the time of open market operations. If we invest in government securities which the RBI issues during the time of open market operations, हम still risk free basis पे बिना कोई भी रिस्क उठाए हम इतना तो कमा ही सकते हैं. Say it is usually 6.5% के अप्रोक्स, राइट. बट मैं कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर अ लॉन्गर टर्म एंड आई हैव टू फेस रिस्क, सो आई विल इंक्लूड दिस टर्म प्रीमियम. टर्म प्रीमियम क्या है? हैविंग योर मनी लॉक्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ऐसा हो सकता है कि कुछ बॉन्ड्स में पे बिफोर मेच्योरिटी रिडीम ना कर पाऊँ, तो मेरा तो पैसा लॉक हो गया ना. नाउ फॉर दैट लॉकिंग आई वांट अ सर्टेन प्रीमियम. देन आई एम इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट्स, सो आई हैव टू बेयर अ रिस्क. Corporates can default, so I will add for credit risk premium, right, based on the health of issuer. Then there are multiple types of bonds which is not in our syllabus, which is callable bond and puttable bonds. So callable bond is something which is of issuer's benefit. Issuer's benefit है, तो being a buyer of bond मैं क्या करूँगा? मैं ज़्यादा देना चाहूँगा कि कम देना चाहूँगा? मेरा तो फायदा हो नहीं रहा, इशूअर का हो रहा है, तो आई विल पे लेस फॉर इट. वेर एज इन केस ऑफ पुट, इट इज द बायर्स बॉन्ड और द होल्डर बेनिफिट्स मोर, एंड आई हैव टू पे मोर फॉर द बेनिफिट्स, राइट. तो इससे भी बॉन्ड का रिक्वायर्ड रिटर्न इम्पैक्ट होता है. प्लस री इन्वेस्टमेंट यील्ड. नाउ री इन्वेस्टमेंट इज लिटिल बिट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो हमको कूपन मिला ना इन दैट एक्सेल वाला स्क्रीनशॉट, वो 80-80 था, तो उसको मैं री इन्वेस्ट भी तो करूँगा, तो वहाँ पे भी तो रिस्क है कि उस रेट पे री इन्वेस्ट कर पाया कि नहीं कर पाया, वहाँ से भी लॉस हो सकता है. तो आई विल ऐड दैट पार्ट ऑल्सो इन माई रिक्वायर्ड रिटर्न. री इन्वेस्टमेंट यील्ड ऐड कर दिया. एंड इन्फ्लेशन तो है ही भाई, क्योंकि ये जो होता है ना, ये रिस्क फ्री रेट ऑन रियल बेसिस होता है, इसमें हमको इन्फ्लेशन प्रीमियम पर ईयर ऐड करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली द बॉन्ड वैल्यू चेंजेस एवरी ईयर, राइट. सबसे बड़ा कंपोनेंट इसमें ये क्रेडिट रिस्क ही प्ले करता है, एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस प्ले करता है. बॉन्ड ऑप्शन इज
वेरी टेक्निकल, इसको हम क्रेडिट वैल्यू एडजस्टमेंट के उससे भी देखते हैं. दिस इज अ लेंथी प्रोसेस इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड का वैल्यू, एंड दिस इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट इन द मार्केट, राइट. नॉर्मली प्लेन वनीला बॉन्ड्स ही इशू होते हैं मोस्टली. ओके, तो लेट्स टैकल मोर अबाउट द क्रेडिट रिस्क पार्ट. क्रेडिट रिस्क क्या होता है, कैसे एसरटेन करते हैं और क्या क्वेश्चन में इम्पैक्ट डाल सकता है. क्रेडिट रिस्क नाम से समझ में आ रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है उनका काम है कि हर एक कॉर्पोरेट्स को, इवन गवर्नमेंट्स को, इवन नेशनल सोवरेन्स को भी रेटिंग दी जाती है, एंड बेस्ड ऑन दैट रेटिंग वहाँ का रिस्क प्रीमियम डिसाइड होता है, राइट. लाइक जो टॉप के 4 रेटिंग्स होते हैं ना, दोज आर कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, वेराज जो नीचे के होते हैं दीज आर कॉल्ड द हाई यील्ड और जंक बॉन्ड्स. जंक बॉन्ड्स इसलिए क्योंकि इनका डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा है. अब अगर यहाँ पे डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो कोई ये खरीदेगा ही क्यों, क्योंकि ये ऑफर करते हैं आपको हाई कूपन, या इन शॉर्ट हाई यील्ड, बिकॉज यील्ड इज अ ब्रॉडर टर्म देन कूपन विच वी विल चेक लेटर. एंड यहाँ पे क्या होता है, ये आपको ऑफर करते हैं सेफ्टी, बट इट माइट इम्पैक्ट योर इंटरेस्ट और योर यील्ड. तो इतना ही है इसमें जानने लायक, डिटेल्स बहुत सारी है, बट दैट कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, राइट. अब हमने इतना देख लिया, तो देखते हैं कि इसमें रिस्क क्या क्या हो सकते हैं. वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर बॉन्ड, जिन बेसिस पे आपने अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड किया था ना, यही तो आपके रिस्क हैं. आपको क्रेडिट डिफॉल्ट होने का रिस्क है, आपको बॉन्ड ऑप्शन लैप्स होने का रिस्क है, आपको री इन्वेस्टमेंट का रिस्क है, आपको इन्फ्लेशन का रिस्क है, टर्म इशूज है आपको, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ रिस्क यू माइट फेस. दिस इज अ ब्रॉडर टर्म फॉर क्रेडिट डिफॉल्ट, बिकॉज काउंटर पार्टी मीन्स हमारे ओपोनेंट में जो भी है, अगर उसने डिफॉल्ट किया तो उससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. In case of bond, we usually use the term credit default because we are dealing with corporates. So this is also self-explanatory. तो बॉन्ड वैल्यूएशन में अभी तक हमने क्या देख लिया, बॉन्ड क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, बहुत बेसिक 4 कंपोनेंट की ज़रूरत है. डिस्काउंट रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कूपन के साथ उसका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली बॉन्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है. बॉन्ड का हमने वैल्यू कैलकुलेट करके देख लिया. अब चेक करते हैं कि हमने बॉन्ड खरीदा क्यों था. हमने खरीदा था रिटर्न कमाने के लिए. क्या रिटर्न का मतलब सिर्फ कूपन है, क्या हमने सिर्फ कूपन कमाया बॉन्ड पे, नहीं. एक्चुअली वी मेक यील्ड ऑन बॉन्ड्स. नाउ व्हाट इज यील्ड? Yield comprises of two things. First thing is what the coupon you are receiving, coupon interest you are receiving, and what return are you making because of changes in price. कूपन से कितना कमाया और चेंज इन प्राइस से कितना कमाया. कूपन से कितना कमाया आसान भाषा में एकदम नॉर्मली सोचते हैं, बिकॉज फॉर्मूला कुछ है बट टेक्निक मतलब मज़ा नहीं आएगा फॉर्मूला. तो एक्चुअली परसेंट नहीं देखना है. जैसे इस केस में एक्सेल वाले, यहाँ पे कूपन 8% था, तो क्या मैंने सिर्फ 8% ही कमाया कि मैंने उससे ज़्यादा कमाया कि मैंने उससे कम कमाया. कूपन यील्ड मैंने 8% तो कमाया फेस वैल्यू पे, पर क्या मैंने खरीदा फेस वैल्यू पे था, नहीं. मैंने तो खरीदा 1147 पे था. मतलब जो मेरा कूपन से रिटर्न आया दैट इज लेस देन 8%, बिकॉज आई मेड 80 बट आई बॉट इट फॉर 1147, एंड इन द ऑपोजिट केस आई मेड 80 बट आई बॉट इट फॉर 877. तो इस केस में मैंने कूपन से ज़्यादा कमाया, इस केस में मैंने कूपन से कम कमाया. So whenever you are calculating the coupon interest you are receiving और the coupon से आने वाला yield, या yield का दो component, एक coupon एक change in price. coupon से जब आप calculate कर रहे हो तब आपको वो सोचना है कि फर्स्ट ईयर में आपने कितने पैसे कमाए कूपन से, डिवाइडेड बाय आपने कितने पैसे एक्चुअल में पे किए उस बॉन्ड को अक्वायर करने के लिए, नॉट द फेस वैल्यू. ठीक है. एंड जो दूसरा कंपोनेंट है विच इज चेंजेस इन प्राइसेस. चेंजेस इन प्राइसेस कितने में खरीदा, कितने में बेच सकते हो. यहाँ पे क्या है, 1147.2 में खरीदा और रिडीम कितने पे होगा, 1000 पे. कब होगा, 10 साल के बाद, राइट. अच्छा, व्हाट इफ मैंने इसको 900 में खरीदा होता, या 950 में खरीदा होता, या 1000 में ही खरीदा होता, या यहाँ पे रिडम्पशन 950 पे होता, या 1100 पे होता. क्या इन सब चीज़ों से यील्ड इम्पैक्ट नहीं होगी, होगी. तो जो यील्ड को चेंज करने में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है ना, वो इसका होता है, चेंजेस इन प्राइस का. इसको हम एक्सेल पे और डिटेल में चेक करेंगे व्हेन वी गो फॉर द पुल टू पार इफेक्ट. बट think how the bond yield will be impacted if you buy at discount, if you buy at premium. If you buy at discount, redeem at premium. If you buy at premium, redeem at discount, or if you do the par thing in both the cases, right. So यहाँ पे एक छोटा सा comparative table है कि what happens in case we issued at discount
एंड रिडीम भी डिस्काउंट पे हुआ, तो वी कांट से बिकॉज कूपन यील्ड को चेक करना पड़ेगा। और अगर सब कुछ कांस्टेंट भी रखें तो भी वी हैव टू चेक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डिस्काउंट वैल्यूज। इट माइट हैपन कि आपने 1000 का फेस वैल्यू वाला बॉन्ड था, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 990, रिडीम्ड एट डिस्काउंट ऑफ 950, तो यहाँ तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि मेरे को लॉस हो गया है। बट व्हाट इफ ये 950 हो और ये 990 हो, तो ये कह नहीं सकते ना ब्रॉडली कि दोनों ही डिस्काउंट पे तो हैं, पर कौन कितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्काउंट पे, विच वी कांट टेल। इशू पार पे हुआ लेकिन रिडीम डिस्काउंट पे किया, तो मेरी तो यील्ड गई क्योंकि मैंने महंगे में खरीदा और रिडीम कम पे हो रहा है, राइट। व्हाट इफ इट इज इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट डिस्काउंट, तब तो मेरी यील्ड और ज़्यादा से गई बिकॉज आई बॉट इट ओवर एक्सपेंसिवली। मैंने प्रीमियम पे खरीदा और रिडीम होते समय मेरे को पार से भी कम वैल्यू रिसीव हो रही है। व्हाट इफ आई बॉट एट डिस्काउंट एंड इट इज रिडीम्ड एट पार, ठीक है बढ़िया है, 950 पे खरीदा था, 1000 में ही रिडीम हो रहा है, तब तो ठीक है, मैं पॉजिटिव में हूँ एटलीस्ट, राइट। व्हाट हैपेंस इन केस इट इज इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार, तब तो प्राइस चेंज का कुछ यील्ड में कंपोनेंट ही नहीं हुआ, तब तो मेरा नो गेन और नो लॉस हुआ। दिस इज नॉर्मल केस, यूजुअली ऐसा ही होता है। एंड व्हाट इफ इट इज इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार, अगेन 1100 में खरीद लिया, 1000 में बेचना पड़ रहा है, तो मेरा तो क्लियर कट लॉस हो रहा है, ठीक है। इशूड एट डिस्काउंट था, मैंने 950 में खरीदा और वाओ 1100 में बेचा, ये तो बेस्ट केस है। कम में खरीदो और पार से भी ऊपर बेचो, बेस्ट केस, राइट। 1000 में खरीदो, 1100 में बेचो, बेटर केस। एंड इन दिस केस कि अगेन मैग्नीट्यूड नहीं पता है, सिर्फ लिखा है प्रीमियम एंड प्रीमियम, तो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड कि कितने प्रीमियम पे खरीदा कितने प्रीमियम पे बेचा, देन यू कांट प्रेडिक्ट। सो डिस्काउंट डिस्काउंट एंड प्रीमियम प्रीमियम के केस में वी कांट से, अदरवाइज इट इज़ वेरी कॉमन। आप आसान भाषा में सोचो कि इतने में बॉन्ड खरीदा, इससे ऊपर में बेचा, तो मेरा तो प्रॉफिट है, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट। यील्ड एक्सेल पे निकालना तो बहुत आसान है, बट फॉर एग्जाम पर्पस ऑफ अ क्वेश्चन पर्पस हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसके थ्रू यील्ड आराम से आ जाएगी। नाउ दिस माइट लुक ओवरवेलमिंग एट द फेस, बट ये बहुत ही सिंपल है। सोचो आपको कूपन कितना रिसीव हुआ, ठीक है, कूपन वाला यील्ड नहीं निकालना है, कूपन कितना रिसीव हुआ यहाँ पे वैल्यू लिखना है, ठीक है। रिडम्पशन वैल्यू आप कितने में रिडीम कर रहे हो माइनस द प्रेजेंट वैल्यू, आपने कितने में खरीदा था, इतने में खरीदा इतने में बेचा, ओवर अ पीरियड ऑफ दिस टाइम। एंड यहाँ पे हमको सिर्फ एवरेज ले लेना है, फिर से नंबर्स के थ्रू जाएंगे बेटर समझ में आएगा। कूपन परसेंट नहीं लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। रिडम्पशन वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, इतने में खरीदा था इतने में बेच दिया ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। वी बॉट इट एट 1147, वी सोल्ड इट फॉर 1000 ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। Doesn't it imply that every year we are making on an average or similar to 11.4 out of price change and 80 out of coupon? Now how does 11.4 came? इनका डिफरेंस कितना होगा, 147.2 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी इट विल नॉट बी 11.4, इट विल बी 14.72। इतना ऑन एन एवरेज एवरी ईयर वी आर अज्यूमिंग टू बी द प्राइस चेंज। नाउ दिस इज वेरी रफ फॉर्मूला फॉर एग्जाम पर्पस ओनली, ठीक है, टेक्निकल नहीं है, यील्ड ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाती है पर। एंड रिडम्पशन वैल्यू एवरेज कर लिया हमने क्योंकि हमें नहीं पता ना, हमने खरीदा इतने में बेचा इतने में ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ होल्डिंग दैट बॉन्ड फॉर 1 year और 10 year, हम इतना अज्यूम करें कि एवरेज प्राइस फ्लक्चुएशंस इतने हुए होंगे। इन सबको कैलकुलेट करके हमारी यील्ड आ गई ऑलमोस्ट 6.08%, राइट, विच वॉज आर क्लोज टू डिस्काउंटिंग रेट, क्योंकि मुझे तो इतना ही कमाना था तभी तो मैंने महंगे में खरीदा था। So when we will check yield in Excel now, you will find in most cases discounting rate और yield ऑलमोस्ट सिमिलर ही जाती है, क्योंकि मैं महंगे में क्यों खरीद रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कमाना ही इतना है। आई वॉन्ट माई यील्ड टू बी दिस मच ओनली, आई विल पुल बैक ऑल दोज फ्यूचर कैश फ्लोज बाय दिस अमाउंट ओनली, राइट। एंड यील्ड का हमने कैलकुलेशन देख लिया। एंड यील्ड का एक और पर्पस है कि यील्ड ना आपको कंपेयर करना सिखाता है। से यू हैव बॉन्ड 1 एंड यू हैव बॉन्ड 2, जिनका प्रेजेंट वैल्यू ये है रिडीमेबल, ये इस पे ये इस पे ये इसका टाइम इतना है, इसका इतना 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 है। तो ऑन द फेस व्हाट अ लेमैन विल लुक एट, यार ये तो कूपन 8% दे रहा है, ये 12% दे रहा है, ये बढ़िया हो गया, ठीक है। ये तो रिडीमेबल भी 1200 पे है और ये तो सिर्फ 1000 पे ही रिडीम हो रहा है, ये भी अच्छा हो गया।
इसका प्रेजेंट वैल्यू अच्छा है यार, ये 800 में मिल रहा है, ये 850 में मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ये वाला खरीद लेता हूँ, ये सस्ता दिख रहा है। और इसमें सिर्फ 10 साल के लिए पैसे लॉक करने हैं, इसमें तो 15 साल के लिए लॉक करना है। तो क्या कंपैरिजन इन बेसिस पे बनाया जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। किस बेसिस पे बनाया जाएगा? यील्ड टू मैच्योरिटी पे, बिकॉज दीज आर वेरी वेग असम्पशंस कि हम एब्सोल्युटली कुछ नहीं कंपेयर कर सकते हैं, ना टाइम, ना अमाउंट, ना कूपन रेट। We have to go for the yield to maturity because yield considers what? Coupon and price movements as well, irrespective of time. अगर इसका टाइम 15 है, इसका टाइम 10 भी है, पर जब हम yield निकाल रहे हैं ना, तो yield is always per annum. So at any point of time during your hold, if you hold it till the maturity, ये YTM till maturity होता है, yield to maturity. If you hold this bond for 10 years, this for 15 years, at any given year, you will be yielding this much amount and this much amount. तो yield comparative basis के लिए भी यूज होती है। इसका एक क्वेश्चन भी है इन द नेक्स्ट पार्ट, राइट। हाँ सॉरी, आई फॉरगॉट दिस थिंग कि यार ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट हमने डिस्कस किया था, ये होता क्यों है एक्चुअल में? तो दिस इज फॉर रीडिंग पर्पज ओनली, टेस्टेबल तो नहीं है। इशू क्यों करेगा कोई डिस्काउंट पे? क्योंकि उसका हो सकता है क्रेडिट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, बट मार्केट से पैसा तो उठाना ही है। पैसा उठाना है, क्या करते हैं? बॉन्ड पे थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, पीपल विल बी अट्रैक्टेड एंड वो खरीद लेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि डिस्काउंट था, हम रिडीम करेंगे पार पे, तो काइंड ऑफ हम अच्छा खासा प्राइस चेंज दे रहे हैं, तो उनकी यील्ड बढ़ जाएगी। ये कौन करता है? वो जंक ग्रेड वाले बॉन्ड्स, राइट। कैश फ्लो के कंस्ट्रेंट्स हैं, ज़्यादा कूपन नहीं दे सकते, से कूपन से 6% दे रहे हैं या 5% दे रहे हैं, तो बॉन्ड डिस्काउंट पे दे देते हैं ताकि आपका यील्ड एडजस्ट हो जाएगा, चलेगा ना? ओके। प्रीमियम पे क्यों इशू कर रहे हैं? क्योंकि भाई हम सेफ्टी दे रहे हैं, वी आर वेरी हाईली रेटेड, वी विल ऑफर यू सेफ्टी। हम उतना कूपन भी नहीं देंगे, अगेन हमारे पास कैश कंस्ट्रेंट्स हैं, या कूपन हम ज़्यादा देंगे या कूपन कम देंगे, तो हम आपको सेफ्टी दे रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ आर क्रेडिट क्वालिटी इज वेरी गुड, वी कैन चार्ज अ प्रीमियम फॉर यू, फ्रॉम यू, सॉरी। एंड व्हाट अबाउट रिडम्पशन? रिडम्पशन डिस्काउंट पे क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया था, हमारे पास उतना कैश ही अवेलेबल नहीं है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को रीपे कर पाए, सो वी हैव टू रिडीम ऑल द बॉन्ड्स एट डिस्काउंट। एंड वाई एट प्रीमियम? वाई एट प्रीमियम पता है क्यों? क्योंकि मैंने एक बॉन्ड इशू किया था 1000 का, जिसपे मेरे को 8% के हिसाब से कूपन देना पड़ रहा था, तो इन्वेस्टर को तो मज़े आ रहे थे, बट हुआ क्या कि बाद में ना मैंने चेक किया कि यार ये तो 7% पे भी मिल रहा है, कि 7% कूपन पे भी मेरे पास बॉन्ड बायर्स रेडी हैं जो मेरे को डेट प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर मेरे को 7% पे मिल रहा है, तो मैं 8% पे क्यों जाऊँ? दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ 1%, दिस इज अ मैटर ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ और डॉलर्स जो कंपनी डेट में लेती है, उस पर 1% की सेविंग्स मीन्स अ लॉट। एंड फॉर दैट इफ यू हैव टू रिडीम योर बॉन्ड्स एट प्रीमियम, कि भाई प्रीमियम ले, बॉन्ड रिडीम कर, सो दैट आई कैन रीफाइनेंस इट, आई कैन री इशू न्यू बॉन्ड्स, दैट will save me more money, right, rather than providing premium. The cost of premium versus the benefit of refinancing will be higher, ये ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैं प्रीमियम पे रिडीम कर लूँगा। So this was it for bond valuation theoretical things. We have not done questions. Questions are in next part. But before that, I have an Excel sheet for you in which we have discussed the pull to par effect and yield in a better way. So right, let's shift to Excel. Okay, so we are in Excel now and starting with the case, वो डिस्काउंट वाला बॉन्ड याद है जिसमें कूपन था 8%, डिस्काउंट रेट था 10% एंड पार पे ही रिडीम हो रहा था और फेस वैल्यू तो 1000 थी एंड टाइम इज 10 years. सो व्हाट इफ एकदम आराम से सोचते हैं कि अगर ये 8% का कूपन दे रहा है, हमें डिस्काउंटिंग रेट 10% है, मतलब वी वॉन्ट मोर आउट ऑफ इट, सो वी विल बाय इट एट डिस्काउंट, ठीक है। What if I also want only 8%? 8% कंपनी दे रही है, 8% मुझे भी चाहिए, तो आई विल चेंज द डिस्काउंटिंग रेट टू 8 एंड वैल्यू कितनी आएगी? 1000, मोर देन 1000, लेस देन 1000, इट विल बी 1000 फ्लैट, बिकॉज जितना मुझे चाहिए उतना तो मुझे कूपन से मिल जा रहा है, तो आई विल बी हैप्पी इन दैट केस, राइट। एंड वॉट इफ आई वॉन्ट लेस देन दैट, जो 6% वाला केस हमने देखा था, अगर कम चाहिए, ज़्यादा मिल रहा है, तो यू हैव टू बाय इट एट मोर, यू हैव टू बाय इट एट प्रीमियम, तो प्राइस प्रीमियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं 8% वाले केस पे। अगर यही बॉन्ड रिडीम हो रहा होता एट अ डिस्काउंट, मुझे 8% कमाना है, 8% कूपन से मिल रहा था, लेकिन प्राइस यील्ड नेगेटिव हो गई क्योंकि मैंने
क्योंकि ये जो रिडीमेबल है ये अब कम पे रिडीमेबल है, तो मुझे इसको कम पे खरीदना पड़ेगा। कम पे खरीद के मैं पार से कम पे बेचूंगा तभी तो मैं कमा पाऊंगा। तो आई विल बाय इट एट 953 एंड नॉट एट 1000। जब ये पार पे रिडीम हो रहा था तब मैं 1000 देने को रेडी था फॉर दिस बॉन्ड। अब अगर ये रिडीम ही कम पे हो रहा है तो मैं इसके लिए ज़्यादा पैसे क्यों दूँ, मैं 953 दूंगा ना। एंड वॉट इफ दिस इज रिडीमेबल एट मोर देन 1000? अगर ये 1100 पे रिडीम हो रहा है, मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, बट टू एडजस्ट दैट 100 रुपीज ऑफ डिफरेंस आई विल बाय एट प्रीमियम। मैं महंगे में खरीदूंगा सो दैट मेरा रेट एडजस्ट हो जाए। यहाँ से मैं यील्ड, जो प्राइस चेंज यील्ड है वहाँ से लूज करूंगा और कूपन से गेन करूंगा, तो नेट नेट मुझे 8% ही मिलेगा, राइट। सेम गोज विद दिस, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, लाइक यू कैन प्ले विद दिस एज वेल। अगर मुझे कूपन चाहिए, से मुझे कूपन अब 15% मिल रहा है, ठीक है, 80 है, ये 1000 पे ही रिडीम हो रहा है, कूपन मुझे बहुत ज़्यादा मिलने लगा, तो मैं क्या करूँगा, और महंगे पे खरीदूंगा ताकि मेरा रेट, जो रिक्वायर्ड रेट है वो कम आ जाए। मैंने इसको 1469 पे खरीदना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसी केस में अगर मेरे को कूपन बहुत ही कम मिल रहा है, सिर्फ 5 ही मिल रहा है, तो अब तो मैं बॉन्ड बहुत डिस्काउंट पे खरीदूंगा, मैं 798 पे खरीदूंगा, राइट। एंड व्हाट इफ दिस इज रिडीमेबल एट से 1200, कूपन से 5 मिल रहा है, रिडम्पशन से थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जा रहा है प्रीमियम, लेकिन 8 चाहिए था, तो क्या 8 बन पा रहा है? नहीं। अगर यही 1500 में रिडीम करूँ तब क्या मैं 1000 पे देने को रेडी हूँ? क्लोज आ गए हम बहुत। 1450 पे रिडीम हो रहा है तब 1000 दूंगा क्या? और क्लोज आ गए। 1430 पे रिडीम हो रहा है तब मैं 1000 देने को रेडी हूँ, ऑलमोस्ट यस। सो अगर ये 5% का कूपन देता है, 1430 पे रिडम्पशन लेता है, तब जाके मेरा जो टारगेट है ना 8% का, वो पूरा हो पाएगा, राइट। ऑफ एक्सपेक्टिंग दिस कि आई कैन मेक दिस मच अमाउंट ऑफ रिटर्न और यील्ड, राइट। यील्ड वाला इस केस में आएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर देयर। ओके, सो ये वाला केस है जब हमारे पास डिस्काउंट बॉन्ड और प्रीमियम बॉन्ड भी है। ये वाला केस प्रीमियम बॉन्ड का है, ये वाला केस डिस्काउंट बॉन्ड का है। कैसे पता चला प्रीमियम बॉन्ड है कि डिस्काउंट बॉन्ड है? देखो, कूपन मिल रहा है 8, मुझे चाहिए 6, बाकी सब पार पे है, तो 6 चाहिए, 8 दे रहे हो, मैं प्रीमियम देने को रेडी हूँ, मैं प्रीमियम पे तुमसे बाय करने को रेडी हूँ। ये वाला केस क्या है? डिस्काउंटेड बॉन्ड्स का। 8% का कूपन दे रहे हो डिस्काउंटिंग, लेकिन मुझे चाहिए 10%, तो मैं कम पैसे देने को रेडी हूँ, राइट। अब अज्यूम करते हैं कि हम है ना ये बॉन्ड को हर हर समय नहीं होल्ड करने वाले, पूरे जो लाइफ है तब तक नहीं होल्ड करने वाले। व्हाट इफ वी होल्ड इट फॉर 10 ईयर्स? अगर मैं इसको 10 साल होल्ड कर रहा हूँ तब तो मैं आज तुमको 1147 देने को रेडी हूँ, बट अगर मैं इसको 1 साल बाद खरीदता हूँ और पूरे 10 ईयर्स तक होल्ड करता हूँ, मतलब मैंने 9 ईयर्स तक होल्ड किया, आज एक बॉन्ड इशू हुआ है 2025 में, 2035 में उसकी मेच्योरिटी है, बट व्हाट इफ आई बाय इट इन 2026? मैंने 1 साल बाद खरीदा, क्या तब भी मैं तुमको इसके लिए 1147 देने को रेडी होऊंगा? आंसर इज नो, बिकॉज अगर मैं इसको आज ही खरीद लेता तो मुझे 25 से 26 का भी तो कूपन मिलता, पर अगर मैंने खरीदा ही 26 में तो आई लॉस्ट दैट वन कूपन, एंड वाई विल आई पे मोर when I'm losing the inflow? The same thing goes on अगर मैं इसको एक एक साल डिले करके खरीदता हूँ एंड अल्टीमेटली मैं सिर्फ इसको 1 साल के लिए होल्ड करता हूँ, मतलब मैंने 9th ईयर में खरीदा, 10th में रिडीम हो जाएगा, तो 9th ईयर में मैं तुमसे 1018 पे खरीदने को रेडी हूँ, when you pay me 8% coupon and when you redeem it at 1000, so that my return target of 6% is achieved. So this is why it is said कि the bond which is issued at premium now, that premium amount will fade away over its life. यहाँ पे फेड अवे हो रहा है, 1147 था, अब प्रीमियम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एंड जो भी पर्सन इसको लास्ट ईयर में बाय करेगा वो इससे और कम प्रीमियम देगा। अग्रीड। इन केस ऑफ डिस्काउंटेड बॉन्ड्स, डिस्काउंटेड बॉन्ड्स सेज कि मैं पूरे 10 साल के लिए होल्ड करता तो मैं तुमको इतना देता, बट ना, कंपनी ये डिस्काउंट कम कर देगी। नेक्स्ट ईयर यू विल नॉट फाइंड दिस बॉन्ड एट 877, बाय, बिकॉज मैंने कूपन दिया है, आई हैव टू रिकवर दैट कॉस्ट एज वेल। So whenever the next buyer comes, I will give him this bond at a higher price, at a higher value. And that discounting thing ना, अगर मैं किसी चीज़ को 10 साल बाद से आज लेके आता हूँ वर्सेस 9 साल बाद से आज लेके जाता हूँ, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? 9 साल वाले की, क्योंकि 10 साल में तो एक और साल हमने उसको पुल बैक कर लिया, तो एक और बार डिस्काउंटिंग हो गई, एक और बार वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ पे भी तो हमारा डिस्काउंट ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ फेड हो गया। डिस्काउंट
पार की तरफ रीच कर रहा है, प्रीमियम भी पार की तरफ रीच कर रहा है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं पुल टू पार इफेक्ट। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ कोई भी बॉन्ड का जो वैल्यू है ना, वो उसकी एवरेज या उसकी फेस वैल्यू पे ही आके रुकता है। यू कैन चेक द ग्राफ, ये ऐसा होता है। ये वाला प्रीमियम बॉन्ड है, ये वाला डिस्काउंट बॉन्ड है। तो ओवर द ईयर प्रीमियम फेड होता जाता है, प्रीमियम बॉन्ड की वैल्यू गिरती जाती है, डिस्काउंटेड बॉन्ड एक्सपेंसिव होता जाता है, और लास्ट ईयर में वो क्लोज टू फेस वैल्यू ही हो जाता है। Now, if you want to make adjustment, I will share this Excel with you, and you can make any adjustments here. And accordingly, the pull to par effect will keep on changing. कि एक टाइम आएगा जब ये डिस्काउंट बॉन्ड और प्रीमियम बॉन्ड की वैल्यू ना ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी, लाइक ये 965 और 969, तो अप्रॉक्स यहाँ पे वैल्यू सेम हो जाएगी। मतलब ये सेम यील्ड करने का ट्राई करेंगे, राइट? लाइक दिस इज फॉर थियोरेटिकल ओनली, इसमें कुछ टेस्टेबल नहीं है, बट इट गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि प्रीमियम और डिस्काउंट एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफ यील्ड। यील्ड क्या होती है कि मुझे अल्टीमेटली कितना चाहिए। तो यहाँ तक तो कहानी क्लियर थी, ये वाला ये स्टोरी था, ये वाला ये स्टोरी था, यहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे हमने ओवर द लाइफ भी देख लिया। और यील्ड को हमने क्या समझा था कि हम या तो प्राइस चेंजेस की वजह से यील्ड कमाते हैं या तो कूपन चेंजेस की वजह से यील्ड कमाते हैं। ठीक है, कूपन वाली यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितना कूपन मिल रहा है डिवाइडेड बाय कितना प्राइस पे करने को रेडी है। इस केस में क्या वैसे ही कैलकुलेट किया है। कूपन मिल रहा है कितना, 80 का, एंड वी आर रेडी टू पे 1147 फॉर इट। तो कूपन यील्ड कितनी होगी, 6.97। एंड सिमिलरली हर केस में हमने वही किया है कि हर साल हम कितना पे करने को रेडी थे। से वी आर होल्डिंग इट फॉर 9 years, तो 9th ईयर या 1 year फ्रॉम नाउ हम उसको 1136 पे खरीदते एंड वी विल गेट 80। उसके नेक्स्ट ईयर हम 1124 पे खरीदते एंड वी विल गेट अगेन 80। तो हमारी यील्ड ये आ जाती, राइट? तो ये आ गई हमारी कूपन यील्ड। नाउ प्राइस चेंज क्या है? व्हाट इफ आई बाय इट नाउ, 10 साल बाद मेच्योरिटी है, बट मैंने आज खरीदा, नेक्स्ट ईयर बेच दिया। तो नेक्स्ट ईयर जो खरीदने वाले वो कितने पे खरीदेगा, 1136 पे। मैंने कितने पे खरीदा था, 1147 पे। मैं 1147 पे खरीद के 1136 पे बेच रहा हूँ। महंगे में खरीदा, कम में बेचा, आई विल लूज समथिंग। तो माई प्राइस यील्ड विल बी नेगेटिव। चेक द प्राइस कि 1147 में खरीदा, 1136 में बेच दिया, तो माई प्राइस यील्ड गोज नेगेटिव। सिमिलर थिंग्स हैपन। मैंने आज खरीदा, मैंने 2 साल बाद बेच दिया। तो मैंने आज खरीदा 1147 पे, 2 साल बाद मैं किसी को बेचूंगा, वो खरीदेगा 1124 पे। आई विल लूज हाउ मच, इतना, नॉट इतना एग्जैक्टली बट सॉरी, समथिंग प्राइस यील्ड आई विल लूज। तो इसी तरीके से जो प्रीमियम मॉड होता है ना, उसकी प्राइस यील्ड नेगेटिव होती जाती है, बिकॉज प्रीमियम फेड्स अवे। प्रीमियम सस्ता होता जाता है, सस्ता होता जाता है मतलब किसी ने शुरू में खरीदा महंगे पे, वो किसी को बेचेगा तो उतना प्रीमियम थोड़ी देगा। इसलिए प्रीमियम बॉन्ड का प्राइस यील्ड नेगेटिव होता जाता है। एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। प्राइस यील्ड एंड कूपन यील्ड को हमने कंबाइन किया। इट इज अ सिंपल सम, यू कैन ऑल्सो यूज द मल्टीप्लीकेटिव थिंग, बट अगर सिंपली भी सोचे तो इट इज क्लोज टू माई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कि मुझे 6% चाहिए था, मैंने उतने से ही चीज़ों को पुल बैक किया था, एंड यहाँ पे मेरी टोटल यील्ड क्लोज टू 6% आ जा रही है। अगेन टोटल यील्ड, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। जैसे ये जो 80 मेरे को मिला, इसको मैं री इन्वेस्ट भी तो करूँगा। लाइक इंडिविजुअल इन्वेस्टर इतना नहीं सोचता, बट बिग कॉर्पोरेट्स थिंक अबाउट इट कि उनको कूपन भी जो होते हैं वो मिलियंस में मिलते हैं, तो वो उसको बैंक में थोड़ी रखेंगे, वो उसको भी री इन्वेस्ट करेंगे। तो जो ये टोटल यील्ड होती है ना, इसमें एक और कंपोनेंट होता है विच इज नोन एज द री इन्वेस्टमेंट यील्ड। हाउ, at what rate of interest you reinvest your coupons. So that also forms part, and this is a lump sum figure for understanding purpose only. Coming to the discounted bond वाला केस, स्टोरी ये थी, यहाँ तक प्रेजेंट वैल्यू आ गई। यहाँ पे 10,987 का कैलकुलेशन हो गया कि मैं 10 साल के लिए होल्ड करने वाला हूँ, 9 या 8 7। ठीक है, what if I buy it today, I will buy it at 877. What if I sell it 1 year from now? 1 year from now मैं बेच रहा हूँ, तो कोई 9 साल पहले खरीद रहा होगा मेच्योरिटी से या इशुएंस से एक साथ बाद खरीद रहा होगा, तो वो कितने में खरीदेगा, 884 में। वाओ, मैंने 877 में खरीदा था, कोई मुझसे 884 में लेने को रेडी है। आई विल गेन सम प्राइस यील्ड ओवर दिस, क्योंकि 877 में खरीदा, 884 में बेचा, तो पॉजिटिव यील्ड होगी। एंड कूपन से तो मिल ही रहा था। कूपन से यील्ड कितना मिल रहा था, अच्छा कूपन कितना मिल रहा था, 8%। कूपन से यील्ड कितना आ रहा था, ज़्यादा आएगा 8 से कि कम आएगा? एकदम कॉमन सेंस लगा के सोचे, 8% मिल रहा था, तो मैंने 1000 थोड़ी दिया है, मैंने तो 877 दिया है।
तो मेरे को 8 से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा होगा। कितना मिल रहा है फर्स्ट ईयर के केस में? तो 9.12 मिल रहा है, देन 988 के अप्रॉक्स मेरे को मिल रहा है, एंड मैं प्राइस से भी कुछ कुछ कमा रहा हूँ। टारगेट था 10%, क्या 10% अचीव हो गया? ऑलमोस्ट यस अचीव हो गया, क्योंकि मैं ये कूपन को भी री इन्वेस्ट करूँगा तो ये री इन्वेस्टमेंट यील्ड भी यहाँ पे आ जाएगी। तो yield वाला थिंग इज दिस मच ओनली, एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ एट नॉर्मल। मतलब कॉमन सेंस से सोचना, हम तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा कि हमें कितना चाहिए, कंपनी कितना दे रही है। अच्छा, कंपनी इतना देने को रेडी है, तो मैं काम करता हूँ प्रीमियम पे खरीद लेता हूँ या डिस्काउंट पे खरीद लेता हूँ, सो दैट मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सब तो हो गया थ्योरेटिकल। लेट्स डू समथिंग प्रैक्टिकल, नॉट क्वेश्चंस बट check this. Okay, so this is a practical bond, how bonds are bought and sold. And I'm not promoting anything, वैसे इतना चैनल है भी नहीं, बट स्टिल तो इसमें वो सारी चीज़ें जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस की ना, यहाँ पे ये YTM लिखा है, यील्ड टू मेच्योरिटी है 10.75% फॉर 6 months ऑफ मेच्योरिटी। हाँ, 10.75 फॉर 6 months। लेकिन यहाँ पे ना एक लाइन लिखी है, दिस बॉन्ड मेच्योरिटी इज 20 months, it will be sold on your behalf after 6 months to return your money, right? A successful sale cannot be guaranteed, it will be executed only if we find a buyer at that time. So why do you think यहाँ पे 10.75 है और यहाँ पे 11% है, जबकि हमने तो सोचा था कि at any point of time during the up to the maturity yield similar होती है ना। यहाँ पे जो yield का difference है ना, that is first because कि आप ज़्यादा समय के लिए होल्ड कर रहे हो, तो आपको ये जो प्लेटफॉर्म है वो पे कर रहा है। इट हैपन्स बिकॉज इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म, तो वो आपको पे करता है। सेकेंड थिंग, इट माइट हैव टू सेल योर बॉन्ड एट डिस्काउंट, मतलब आपको अपना बॉन्ड डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा, आपको रिडम्पशन डिस्काउंट पे करना पड़ेगा, आपकी यील्ड गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको बायर भी तो फाइंड करना है। तो दिस थिंग इम्पैक्ट्स योर यील्ड फॉर 6 months एंड फॉर 20 months। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। रेटिंग, वी टॉक्ड अबाउट रेटिंग एजेंसीज, राइट? यहाँ पे कंपनी की रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है, एंड अकॉर्डिंगली जितनी बेटर इसकी रेटिंग होती जाती है उतना कम इसमें रिस्क होता है, एंड हाई रिस्क वाली यूजुअली हाई यील्ड भी देते हैं। हम हाई यील्ड भी चेक कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ये लिखा ही हुआ है कि ट्रिपल ए होता तो ये 7.8% ऑफर करता, वेराज फॉर ट्रिपल बी ये 11 पॉइंट कुछ परसेंट ऑफर करता। आई गेस द वेबसाइट इज डूइंग समथिंग। ठीक है, तो इतना ब्रॉडली समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये तो हो गया, ये है इंटरेस्ट, ये वाले काम की चीज़ है। जो हम इनफ्लो की बात करते हैं ना, जो 80 को पुल बैक करते हैं, वो 80 कहाँ से आया? ये है वो इंटरेस्ट अमाउंट कि 23rd ऑफ दिसंबर को यू विल बाय दिस मच, गेट दिस मच, देन इतना 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 आपको मिलता जाएगा। इसी को पुल बैक करते हो आप टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे उसने सेल रिक्वेस्ट डाल दी, यहाँ पे बिक जाएगा, यहाँ पे उसका बचा हुआ इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, एंड व्हाट इफ, हाँ इसमें और कुछ भी इंटरेस्टिंग है, नॉट दिस, व्हाट इफ वी गो ना, यहाँ पे एक ब्रोकरेज भी शो करता है, एंड यू कैन रीड अबाउट द कंपनी है कि उसका सिक्योरिटी कवर कितना है। यहाँ पे यूजुअली वो एबिट मार्जिन वाला चीज़ काम आता है कि हाउ मच ऑफ योर ईबिट इज एबल टू कवर योर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, राइट? सो दिस वॉज द प्रैक्टिकल थिंग। एक्चुअली आई एम नॉट फाइंडिंग कि यहाँ पे डिस्काउंट भी दिखता है, जब आप बाय करने जाओगे ना इसको, तो आपको डिस्काउंट भी दिखेगा। एंड इफ यू गो फॉर बॉन्ड्स, इफ यू सर्च फॉर हाई यील्डिंग बॉन्ड्स, यू विल फाइंड कि उनकी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। हेयर यू कैन फाइंड द डिस्काउंटेड बॉन्ड्स। डिस्काउंटेड बॉन्ड्स आप देख रहे हो, इसकी यील्ड कितनी है? 11.75% इज वे हायर देन मार्केट एवरेज, बट इसकी रेटिंग खराब है। इसकी रेटिंग उससे बेटर है तो इसकी यील्ड उससे कम है। एंड इफ आई बाय हाई रेटेड गबरू नहीं, हाई रेटेड बॉन्ड, हाई रेटेड बॉन्ड्स में भी यही शो कर रहा है। आई गेस नॉट मेनी बॉन्ड्स आर लिस्टेड नाउ। 11% ये देखो, इसकी ए रेटिंग है, ये 10.75 है, इसकी भी ए रेटिंग है, बट इस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और बेटर होगी। इसका यील्ड 10.25% है, इसकी रेटिंग खराब है, बट इसका नाम बहुत है मुथूट फिनकॉर्प का, दिस माइट नॉट डिफॉल्ट, तो इसकी यील्ड 9.5% है। एंड व्हाट वी कैन चेक, हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स में वही खराब बॉन्ड्स दिखाएगा, खराब बॉन्ड्स इन द सेंस कि इनकी यील्ड बहुत ज़्यादा है बट क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। So that's it for this part, and we checked almost everything theoretically, but for exam purpose, we will do questions in the next part. So thanks for watching.